All right. So others will get started, and this is chapter 5 of grade 7, which is about lines and angles. So let me create a whiteboard first, where we can. All right. So this will be fairly a cakewalk for you, because this is a much simpler, smaller chapter, and it has a lot of what you call uh, recap of what we have done in the previous classes. We'll just be learning little different aspect of lines and angles in this chapter. So let me share my screen also. All right. Okay. Yeah. So let me know once you're able to see my screen. Okay. Okay. And not only for you, but for all the other kids who are attending these classes, online, or they are watching the videos offline. My request is always that no, this is not a TikTok video where आप देखेंगे मजा करेंगे जाएंगे. This needs little more attention, because if you stay glued to the video, if you watch it through the to the end, then only you will be able to follow all the concepts that we learn in these classes. And make sure that you're able to watch it, and then practice, make I mean do practice after the class also. तभी जो है उसका फायदा होगा. And if you have any question, if you find any opportunity where you think I can explain some concepts differently, explain something better, then only you'll be able to give feedback and get maximum benefit out of this. मैं देखता हूँ बच्चे आते हैं, वीडियोस में जाते हैं, देखते हैं, फिर निकल जाते हैं. पता नहीं, मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि वो पढ़ाई कर रहे हैं या फिर मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद नहीं आ रहा है. Both ways I'm confused, but again request everybody, not only to the kids but also to their parents, that they should go through the videos and give feedback with respect to how effective, how easy it is for them. All right, चलिए फिर start करते हैं. So basically, this in this chapter we're going to talk about lines and angles. So just to do a quick recap of what we did in the previous classes, right? Anything like this, which has endpoints, okay? This is called line segment. हिंदी में रेखाखंड बोलते हैं. If it is like a ray, meaning there is no endpoint, it can keep moving the direction, like a light coming out of torch, or anything which has indefinite end, that is called line. So line and line segment, this is the difference. अगर दो points है ये A and B, this is a line segment because the length is fixed and it has endpoints. ठीक है. Now another thing that we learned was angle, meaning when two line segments or lines, it could be a line, it could be two lines or line segments. When they intersect at one point, they incline at a certain angle, or incline in a certain direction. That makes an angle. So this is one angle. This is another angle. This is another angle. This is another angle. Right? So other lines have, if they are crossing each other, they make four angles. If they these are two line segments and they have an intersecting point. Let's say this is A, this is B, this is C. So this is an angle. So AB is a line segment, BC is a line segment, and this is the angle. The way we denote this is we say ABC, meaning ABC. This is how you can read it, or you can say CAB, CBA. So which depicts that B is the intersecting point, and one end of the line angle is one end of the line segment is C, and other end of the second line segment is A. So this is how we represent this. So this is what we have learned in the previous classes. What we have learned in these classes are again different types of angles, and combination of lines with which depict certain properties of behavior. Okay, so let's start. So
There are other few other things that we learned in the previous class. Okay, when two line segments meet each other, which are perpendicular to each other, uh, this angle is called right angle. If this is less than 90 degree, meaning if this is not perpendicular and no, the gap between the two line segments is smaller than a right angle, gap as in this this inclination is lesser than 90 degree, it is called acute angle, या हिंदी में बोलते हैं इसको न्यून कोण. And if the line segments are cutting at each other, I mean, kind of intersecting each other, which is greater than 90 degree, this is called obtuse angle, और हिंदी में बोलते हैं इसको अधिक कोण. ठीक है? Okay. So these are three things that we need to remember before we jump onto this chapter. So first thing, let's look at two angles. This one and this one. So this is, let's say, 30 degree, and this is 60 degree. So let's say this is ABC and this is EFG. The other points. So these are the line segments. So EF is one line segment that is intersecting another line segment, which is FG at the intersecting point F. Okay. So this angle is 30 degree, this is 90 degree. What is this? These two. What are these two angles called? इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं पूरक कोण, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं complementary angles. So in simple terms, when two angles, दो कोण, when the sum of these two angles is 90 degree, that is called complementary angles. So these two angles are complementary to each other. These two are called complements to each other. Okay? This is first thing. Now, so there could be multiple combinations, right? 20 degree का एक angle हुआ and 70 degree का एक angle हुआ. These two put together is 90 degrees. So these two are called, this pair is called pair of complementary angles. ठीक है? मतलब ऐसा कोई एंगल था 20 डिग्रीज का और ऐसा कोई एंगल था 70 डिग्री का. ठीक है? तो दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. ठीक है? Likewise, you can think of different combinations. मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और या पूरक कोण जिसको बोलेंगे हिंदी में. तो 2070 हो, 1872 हो, 189 हो, 4050 हो, जो भी हो, मतलब बेसिकली you have to, if you add two angles and then if that becomes 90 degree, those two angles are called a set of or pair of complementary angles. ठीक है? तो जैसे आप लोग एग्जाम में या कभी ऐसे सम्स देखोगे तो आपको बोलेगा कि one angle is 45 degree. What is the complementary angle for this one? So what you will do is you will deduct this one from 90 and then you will say that will be the second angle of the complementary angle. तो इसी के there is another one which is called supplementary angle. So हमने जो कुछ भी सीखा, सप्लीमेंट्री एंगल इसको हिंदी में बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं संपूरक कोण. ठीक है? हिंदी में संपूरक, इंग्लिश में सप्लीमेंट्री. सो कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री. ठीक है? तो दिस इज 180 डिग्री. मतलब जितना भी हमने सीखा 90 डिग्री के लिए, इफ यू थिंक इन टर्म्स ऑफ 180, that is what is supplementary angle. Just let me pick up this call. Just 1 second. So basically, my family is traveling back here. So they are in
न्यू जर्सी राइट नाउ, तो थोड़ा फ्लाइट का पंगा चल रहा है. ओके, ऑलराइट. तो हमने हमने सीखा दो तरह के पेयर्स के बारे में सीखा. वन इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, चाहे वो 1080 हो, 2070 हो, 1872 हो, 3060 हो, 4545 हो. If there are two angles, if you add them up, if that becomes 90, that is called complementary angle, या हिंदी में पूरक कोण बोलेंगे इसको. और अगर दो एंगल्स का सम, if that is 180 degree, that is called supplementary angle या समपूरक कोण. ठीक है. So अभी देखिए ये दो चीज हमने सीखा. अभी एक और देखते हैं. Let's look at this. Let's see. This is the common point. This is A, this is B, this is C, and this is D. So this is one line segment, this is other line segment, this is the third line segment. यहाँ पे क्या हो रहा है? CBD. So this is one angle called CBD. We are seeing one angle is this. Second angle is ABC. Okay. Now, what is this called? This is one angle, this is second angle. What is happening here is both the angles have a common intersecting point. Okay. So this is one angle, this is the second angle. Let's call it this is 1, this is 2. Okay. So angle 1 and angle 2 is adjacent to each other. एक दूसरे के बिल्कुल पास में है, and they have a common intersecting point. So जैसे मैं adjacent है बोल रहा था, this is exactly the same terminology that is used in math also. We call them adjacent angles. ठीक है. Adjacent का हिंदी में क्या होता है? आसन्न कोण. मतलब जब एक दूसरे के ऊपर आसन लगा के आसन क्या होता है हिंदी में बोलते हैं ना, आसन जो बैठने के काम आता है, राइट. जो जैसे घर में पूजा होता है या नहीं, पुराने जमाने ऋषि मुनि होते थे, मतलब आसन लगा के बैठ गया. तो आसन लगाना मतलब किसी चीज के ऊपर आश्रित होना, आसन जैसे उस तरह से. ठीक है. तो समझिए कि ऐसा देखेंगे आप, थोड़ा विजुअलाइज करेंगे, थोड़ा क्रिएटिवली सोचेंगे इसको. एंगल 1 इज सिटिंग ऑन एंगल 2. ये इसका बेस पे समझिए कि बैठा हुआ है. इफ यू फ्लिप इट, यू कैन आल्सो से एंगल 2 इज सिटिंग ऑन एंगल 1. सो इसको बोलते हैं आसन्न कोण या एडजेसेंट एंगल्स. तो हमने सीखा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सम ऑफ टू एंगल्स 90 डिग्री. Supplementary angle, sum of two angles 180 degree, and this could be any combination that you can think of. Exam में सवाल पूछता है कि भाई one angle is 40, what will be the second angle to make it a supplementary angle pair? So you will do 180 minus 40 कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा. This is fairly straightforward. देखिए भाई कौन ज्वाइन कर रहा है. Okay. All right. So Veer and Chris are joining. Let them be here first. Veer and Chris. Veer and Chris, आप लोगों को आवाज सुनाई पड़ रही है? What? Can you hear me? Yes, sir. Okay, very nice. तो चलिए, we just started 10-12 minutes ago. So quickly I'll do a recap of what we learned. Okay. So we learned something called complementary angles. ठीक है. So when sum of two angles, angle A and angle B is 90 degree, this set is called complementary angles. वही same thing is termed differently. If A plus B is 180, then this is called supplementary angles. तो अगर मान लिया जाए, I mean, I'm just doing a quick recap, right? So let's say you have one angle as this, 20 degree. ठीक है. This is A, B, C. So two line segments AB and BC are cutting each other at point B and making an angle of 20 degree. And let's see, this is D, E, F. This is line segment DE is cutting line segment EF at point D and making, let's say, 70 degrees. So if you add these two, this is 90. So this set of angles is called complementary angles. ठीक है. अगर ऐसा ही होगा, दो एंगल्स रहेंगे, and if they add
to 180 degree, this is called supplementary angle. ठीक है? Mhm. So, okay, let's see if you have any question. Sure. Yeah, better. Sir, can you repeat what you said? Because in my mobile there is some problem in its sound, so there is Okay, no clear sound. ठीक है बेटा. So I was talking about angles. Okay, so today we are talking about angles. ठीक है? So angles you would know, right? When two line segments cut each other at a point, right? Or two lines even, right? Intersect each other at a point. The inclination is called angle. तो यहाँ पे बोल रहा था, पहले आपने पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि what is angle and how do we measure the value of an angle. So here we are talking about the relationship between the angles, okay, different types of angles. So this is called complementary angle, meaning when two angles I'm just naming them as A and B, okay, or let's say this is one angle, 20 degree, let's say, or 30 degree, whatever. I call it angle 1, okay, and the second angle which is 70 degree. Okay. So I call it angle 2. If sum of angle 1 and angle 2 is 90 degree, okay, then they are called complementary angles. And if the sum is 180 degree, these are called supplementary angles. ठीक है? और अगर नहीं क्लियर हुआ तो भी कोई बात नहीं है. पहले जो वीडियो मतलब जैसे मैंने क्लास स्टार्ट किया था इसका रिकॉर्डिंग जिसे आप देखेंगे, शुरू में आई एक्सप्लेन्ड इट. Again, just go hear it. Probably it will make it clear. उसके बाद भी डाउट रहता है तो आप मुझे पूछ लेंगे, है ना? Okay. So again, just in summary, two combination of angles we have learned so far. One is called complementary angle and one is called supplementary angle. Okay. So if sum of two angles is 90 degree, that is complementary. If sum of two angles is 180 degree, that is called supplementary angle. Okay. Chris, ठीक है बेटा? Sir, I studied before also, sir. हाँ, नहीं समझे. हाँ, okay, ठीक है. Then you already know it. Then we are doing a revision only. Very nice. Now we talked about the third thing, which is called adjacent angle. ठीक है? Adjacent angles. Adjacent क्या होता है? Something being adjacent to each other, मतलब एक दूसरे के आसपास. हिंदी में बोलते हैं आसन. तो ऐसा अगर हो, if you have, let's say, this combination, this is point A, B, C, and D. The way we will read this is, there is one line segment AB, second line segment is BC, third line segment is BD. Okay. So there is one angle here, second angle is here. Okay. So ABC. So angle ABC. This is one angle. There is second angle CBD. And actually there is one more angle, okay? That is ABD. मतलब ये वाला angle. ठीक है? So anyways, we are not talking about ABD right now. Let's look at these two angles. ABC, ये वाला angle, इसको मान लिया जाए हम बोलते हैं angle 1. This is one angle for us. And this is second one, CBD. Let's call it angle 2. ठीक है? So here, what is interesting to know is both the angles are meeting at one point, that is B. Okay. So when such a situation is there, when two angles are next to each other, meeting at one point, and they have one line segment which is common. So in both angles 1 and angle 2, if you see, यहाँ पे आपका जो line BC है, that is common. First में ABC, second में this one. So this line is common. So when you have one common point and one common line between two angles, they are called adjacent angles because they are adjacent to each other. एक दूसरे के just बाद में है. ओके. और हिंदी में इसको एडजेसेंट एंगल को बोलते हैं आसन्न कोण. ठीक है? आसन हिंदी में अगर समझने के लिए बोलेंगे, आसन इसलिए, आसन मतलब पंडित जी पूजा कराते हैं तो बैठते हैं, आसन के ऊपर बैठते हैं. तो वहां पे देखेंगे कि आपका दोनों एंगल एक के ऊपर बैठा हुआ है. अगर ये एंगल 1 देखेंगे तो दिस विल फील लाइक ये इसका आसन है, इस पे बैठा हुआ है इस पे.
एंगल 2 के ऊपर एंगल 1 बैठा हुआ है। इसको अगर फ्लिप करके सोचेंगे अगर, तो देखेंगे एंगल 2 के जो है एंगल 1 के ऊपर बैठा हुआ है। सो दैट इज व्हाई इट इज, याद करने के लिए बोल रहा हूँ, उसका लिटरल मीनिंग मत जाइएगा। दिस इज कॉल्ड, हिंदी में बोलते हैं उसको आसन कोण, और इंग्लिश में बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, अच्छा, okay, now let's look at another thing. So we were talking about line segments. आपके ये रेज भी हो सकते हैं, लाइन भी हो सकता है, ठीक है। स्टिल लेट्स से वन लाइन इज, दिस इज ए बी, दिस लेट्स कॉल इट, दिस इज सी डी। और इसको ऐसे कर सकते हैं, एक्चुअली वी कैन रिप्रेजेंट दिस एज, ये ए, ये बी, ये सी और डी, और मान लिया जाए ये ओ है सेंटर में, है ना। तो दिस इज, दे आर टू रेज, ऐसा इसको डिपिक्ट करते हैं, राइट। रे ए बी, मतलब इसका कोई एंड नहीं है, दिस विल स्ट्रेच डिपेंडिंग ऑन हाउ मच रियल स्टेट यू हैव। मतलब अगर बड़ा पेज रहेगा तो उस पर पूरा आगे भी खींच सकते हैं, देयर इज नो एंड। So that is the difference between line and line segment, right? Line segment have a fixed length, line doesn't. It can go in any direction to the infinity. Now here, मान लिया जाए, see this is these are two angles, okay. Let's say इसको हम लोग 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, इसको 3 बोलते हैं, इसको 4 बोलते हैं। They are 4 angles, but we'll focus on 2, let's say, okay. So let's say we are not looking at this part, okay. We are only looking at this side. So this, we are talking about A B, and this is O and D. अब देखिए यहाँ पे, there's one thing interesting here. So if you look at angle 1 and angle 2, these are adjacent angles because they have one line which is common. OD is common, and then they're intersecting at point O. So this is also adjacent angle. But apart from this common line, the angle 2 has this line, angle 1 has this line. That is how you can say, right? OA is one line and OB is another line. So when the opposite sides of both the angles of a adjacent angle is one ray or one line, this is called linear pair of adjacent angle. Okay, मतलब देखिए ये भी, ये और ये जो है, ये angle 1 and 2 are adjacent angles because we have one line common, they're intersecting at one point. इस पॉइंट पे मिल रहा है और ये कॉमन लाइन है। लेकिन अभी इस एंगल का दूसरा लाइन ये है और इस एंगल का दूसरा लाइन सेगमेंट ये है। If they form one line, one straight line, okay, then this is called linear pair. Linear pair, okay. मतलब it is another type of adjacent angle, but the second line is actually is in one line, actually. Okay, so this is, they are joining each other. Okay, so that is the difference between adjacent angle and another flavor of adjacent angle called linear pair, और हिंदी में बोलते हैं रैखिक युग्म। अब रैखिक युग्म से बोलते हैं कि बिकॉज ये एक रेखा बना देता है, मतलब आपका दो एंगल्स थे, अगर देखेंगे तो दिस बिकम्स वन लाइन। ये एडजेसेंट एंगल था 1 और 2, क्योंकि ये लाइन कॉमन था और पॉइंट कॉमन था, इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे। लेकिन द सेकेंड पार्ट, दिस वन एंड दिस वन ऑफ एंगल 1 and 2 इज फॉर्मिंग अ लाइन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रैखिक युग्म, या हिंदी में इंग्लिश में लीनियर पेयर। अब लीनियर किस लिए? क्योंकि सेकेंड लाइन, दिस इज मेकिंग अ लाइन, लीनियर, लाइन से बनता है लीनियर, है ना। अभी तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? No, sir. Okay. Okay. Now let's look at one more thing here. Okay. This line segment A, कहाँ गया? A C D, line segment or line whatever it is. Okay. Meaning
both are stretching beyond the intersecting point. Okay, अभी देखिए, this is one angle, this is one angle, this one, so 1 2 3 4. So mostly when two line segments cross each other, they form four angles between them. Okay, अभी एंगल 1 और 3 इसको बोलेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, या हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण. ठीक है, उसी तरह 2 and 4, these are opposite to each other. Okay, in the opposite direction when two line segments are cutting. So this is called, ये भी इसको भी बोलेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इसको इसको बोलेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. तो बेसिकली क्या हुआ कि ऐसा जब भी टू टू रेज या टू लाइंस और टू लाइन सेगमेंट्स कट ईच अदर and extend in both direction beyond the intersecting point, this angle and this angle will be called vertically opposite angle, या हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण. This angle and this angle will be called vertically opposite angle या शीर्षाभिमुख कोण. ठीक है, तो ये हो गया आपका four types of angles that we see or come across, or that we need to kind of we learned about complementary angles, मतलब two angles adding up to 90 degrees. ठीक है, we learned about supplementary angles when two angles add up to 180 degree. ठीक है, मतलब okay, somebody is joining. Okay, all right. So basically, no, going back here. Okay, so पहला हो गया 90 डिग्री. अगर दो एंगल्स को सम करेंगे, ऐड करेंगे, 90 डिग्री होता है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण हिंदी में. और 180 डिग्री होता है तो उसको बोलेंगे समपूरक कोण हिंदी में, और यहाँ पे या फिर सप्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है, तीसरा हमने सीखा कि जब व्हेन देयर आर टू एंगल्स sitting on each other with one line being common and intersecting at a point, these are called angle 1 and 2 will be called adjacent angles, और हिंदी में बोलेंगे इसको आसन्न कोण. ठीक है, इसी में अगर ये वाला लाइन सेगमेंट और ये वाला लाइन सेगमेंट, मतलब ये ए बी और सी, इफ दिस फॉर्म्स वन लाइन, मतलब ऐसा हो जाए अगर बी ए सी डी, तो अगर ए डी एंड डीई डी सी, ये दो लाइन सेगमेंट, इफ दे फॉल इन वन लाइन इन द केस ऑफ एडजेसेंट एंगल कॉम्बिनेशन, मतलब ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट है क्योंकि ये लाइन कॉमन है, एक पॉइंट पे मीट कर रहा है. तो दो जो एडजेसेंट एंगल्स हैं, उसका जो सेकंड लाइन है, जो आउटवर्ड लाइन जो है, if this is in one line, this is called linear pair. And then we learned about the vertically opposite angle, ये वाला, या हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण. ठीक है, तो ये एंगल is vertically opposite, this one and this one are vertically opposite. ठीक है, या शीर्षाभिमुख कोण. ये हमने एंगल्स के बारे में सीखा. ठीक है, now let's go to any doubt so far बेटा, कोई कंफ्यूजन बताइए बिफोर आई मूव ऑन. Chris, Veer, others, so far so good. ओके, ठीक है. वीर, आपको भी समझ में आ रहा है? क्रिस, आप भी थम्स अप दिखा दीजिए ऐसे करके, अगर आप सुन पा रहे हैं तो, मतलब इफ यू कैन फॉलो मी. ओके, चलिए ठीक है, आई अज्यूम कि ठीक है. अगर इसमें से भी कुछ क्लियर नहीं होता है या कुछ डाउट होता है तो आप, जब ये वही बोलता हूँ, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि वीडियो देखेंगे तो it will at least help you make sure that you followed the whole concept, and if there's something that is not understood और कुछ एक्सप्लेन करना है तो मुझे बता पाएंगे. पूछेंगे सर ये चीज नहीं समझ में आया, आप ठीक से नहीं बताए, मैं फिर से बता दूंगा उसका अलग से करके. हाँ, ओके. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पेयर ऑफ लाइंस, मतलब रेखाओं का जोड़.
ठीक है, अब देखिए दिस इज वन लाइन, दिस इज वन लाइन, ठीक है। ये क्या हो गया, दिस लेट्स से दिस इज वन लाइन सेगमेंट, ओके। क्योंकि अगर लाइन बनाऊंगा तो पता नहीं मेरा A4 शीट कम पड़ेगा, है ना, वो कितना दूर तक जाएगा, तो अभी यहाँ पे सेगमेंट पे ही रहते हैं। तो मान लिया जाए तो दिस इज वन लाइन एंड दिस इज सेकेंड लाइन, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, अगर मान लिया जाए कोई तीसरी लाइन आ जाती है ऐसे, EF, ओके। सो व्हाट इज हैपनिंग, अभी तक हम पढ़े जब एंगल्स देख रहे थे, देन टू लाइंस और लाइन सेगमेंट्स वर काइंड ऑफ क्रॉसिंग ईच अदर। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट वन पेयर ऑफ लाइन, मतलब दो लाइंस ऑलरेडी हैं, उसको तीसरी कोई लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है एट वन पॉइंट, ठीक है। तो दिस इज द, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, मतलब दिस इज अ नो combination where you have two or more lines and then there is a third line crossing it, these two lines. It is called intersecting lines बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। मतलब ये रेखाएं एक दूसरे को छेद कर रही है, ऐसा बोल सकते हैं हिंदी में ना, नहीं था ठेठ भाषा में, लेकिन राइट टर्मिनोलॉजी इज प्रतिच्छेदी रेखाएं, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। बेसिकली व्हेन यू हैव टू लाइंस and when the third line is intersecting it, it's called इंटरसेक्टिंग लाइंस। अभी देखते हैं इसमें और अलग अलग कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, ठीक है। अभी ये हो गया, मान लीजिए आपका ये सेगमेंट है AB, दिस इज CD एंड दिस इज EF ना। तो अभी देखिए हम लोग जो भी सीखे अभी तक, व्हेन लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर दे मेक एंगल्स, राइट। सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। लाइकवाइज यहाँ पे CD को भी EF ने क्रॉस किया है, तो यहाँ पे भी एक चार एंगल बन रहा है, ठीक है। सो 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो बेसिकली एक छोटा सा करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो दिस इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, उससे एंगल्स बना। तो अगर ये तीसरी रेखा है जो दो दो थर्ड लाइन है जो दो लाइन को इंटरसेक्ट करे, इसको हिंदी में एक्चुअली एक ज्यादा सही टर्म होता है, उसको बोलते हैं तिर्यक छेदी रेखाएं, ठीक है, या ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल इज समथिंग दैट रिप्रेजेंट्स that you have two lines and there is a third line that is intersecting both of them. मतलब अगर ऐसा कॉम्बिनेशन रहेगा, अगर ये लाइन और ये लाइन, दिस विल नॉट बी कॉल्ड ट्रांसवर्सल, ठीक है, क्योंकि दिस थर्ड लाइन इज नॉट कटिंग दिस लाइन। तो ट्रांसवर्सल का मतलब ही ये है, यू हैव टू हैव टू लाइंस एंड देयर इज अ थर्ड लाइन व्हिच इज इंटरसेक्टिंग बोथ ऑफ देम, मतलब एक तीसरी रेखा जो दोनों रेखाओं को कट कर रही हो या इंटरसेक्ट कर रही हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल या हिंदी में तिर्यक छेदी रेखाएं, ठीक है। ओके, तो हाँ, तो नाउ लेट्स गो बैक टू व्हाट यू वर ट्राइंग टू डू। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी विल लर्न अबाउट दिस वन, ओके, दिस कॉम्बिनेशन ट्रांसवर्सल या तिर्यक छेदी रेखाएं। अभी क्या बोल रहा था मैं कि जैसे ये लाइंस जो है जब इंटरसेक्ट कर रही है, AB, लेट्स से CDEF, ठीक है। अभी देखिए एक ये जब ये AB एंड EF जब एक इंटरसेक्ट किया, मान लिया जाए ये O है ये पॉइंट पे, और ये मान लीजिए P है आपका, ठीक है। तो जब इंटरसेक्ट किया तो AB और EF व्हेन दे इंटरसेक्टेड एट पॉइंट O दे मेड 4 एंगल्स, ठीक है। इसको 1, 2, 3, 4, इसको बोलेंगे 1, 2, 3, 4, ठीक है। सॉरी नहीं, इसको बोलते हैं 5, 6, 7, 8, ठीक है। सॉरी, तो अभी देखिए यहाँ पे there's certain names for this, the angles that we see here, and nothing very impractically difficult. अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, ये और ये लाइन देखिए, इसके अंदर में मतलब 3, 2, 5 और 8, this is it's like these two lines are covering these 4 angles, right? छाता ऐसा है उसका, छत है उसका एक्चुअली। दिस इज कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स, मतलब 2, 3, 5 और 8,
अगर इसको थोड़ा साफ साफ देखना चाहें तो थोड़ा सा गंदा हो गया है। हाँ हाँ, 2, 3, 5 और 8 ये क्या हो गया, ये इंटीरियर एंगल्स है, मतलब व्हेन द टू लाइंस आर कवरिंग दीज एंगल्स, ओके, दिस इज कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स, या अंतर अंतर कोण, ठीक है, मतलब कोई चीज अंदर में है तो अंतर कोण बोलते हैं उसको, और इंग्लिश में इंटीरियर एंगल्स। उसी तरह से क्या होगा, दूसरा कॉम्बिनेशन हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल्स। तब एक्सटीरियर एंगल्स क्या हो गया, 1, 4, 6 और 7, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इसको बोलेंगे बाह्य कोण या एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो बेसिकली दो कॉम्बिनेशन हमको समझ में आ गया, ठीक है। अभी देखिए उसी तरह से बोलते हैं इसको, एक होता है, इसको थोड़ा क्लीन करते हैं, नहीं तो आप लोग को फिर दिखेगा नहीं। ओके, अभी देखिए एंगल 1 और 5, ये और ये, 4 और 8, 2 और 6, 3 और 7, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब एक ही जैसा है। मतलब ये भी देखिए, एक लाइन के ऊपर ये वाला है, ये भी इस लाइन के जस्ट ऊपर इस साइड में है, मतलब सेम डायरेक्शन में सेम पोजीशन में अगर है उसको बोले करस्पॉन्डिंग एंगल। मतलब एंगल, इसको साफ ही कर देते हैं, देखिए कि ये दो लाइन है, उसको थर्ड लाइन क्रॉस किया Sir, है। हाँ बेटा बोलिए। sir, you are sharing the screen? सॉरी, सर आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं सर? हाँ आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। सर मुझे नहीं दिख रहा है सर स्क्रीन। नहीं दिख रहा आपको? आदर्श आपको दिख रहा है? ओके, नो सर नहीं दिख रहा। let me share it again then, पता नहीं क्यों। Anyways, so I thought I was sharing it, it was recorded, but ठीक है, let me share it again. Were you able to see it before or you were not? पहले दिख रहा था? यस सर। ओके यस ठीक सर है, दिख रहा था। ओके अभी दिख रहा है? यस सर। ओके ऑलराइट, अभी दिख रहा है? ओके, यस so सर। I was, हाँ, so I was talking about, no, यस so वी कैन सी इट। okay, very nice. So what I was saying was we started with transversal, right? That this is one line, this is second line, and there is a third line cutting it. इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल, या हिंदी में बोलते हैं तिर्यक छेदी रेखाएं, मतलब तीन रेखाएं इसी को छेद कर रही है, ठीक है, इसलिए इसको हिंदी में बोलते हैं तिर्यक छेदी रेखाएं, और इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, ओके। तो इसको खैर मेरा हैंडराइटिंग अभी डॉक्टर से हैंडराइटिंग हो गया, इसको मत देखिएगा वैसे, लेकिन basically what we are trying to learn here is there are two lines and there is a third line that is cutting both of them, ठीक है, then this is called transversal. What I was saying was कि अगर ऐसे ऐसे तीन लाइन हो, only one line is cutting only one of them, this is not transversal, okay, ठीक है। it always has to be like कि कोई भी दो लाइन है, इसको थर्ड लाइन क्रॉस कर रहा है, that is called transversal, ठीक है। तो अभी now we are seeing that there are four angles, right, for every intersection. मान लिया जाए ये ए बी है, ये सी डी है, और ये ई एफ है, ठीक है। सो व्हेन ए बी इज कटिंग ई एफ और vice versa, if EF is cutting AB at this point, there are four angles that are made, ठीक है। इसको 1, 2, 3, 4 बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको यहाँ पे इसी तरह से CD is cutting at EF at this point, there are four angles made here also, okay। तो इसको बोलते हैं, मान लिया जाए 5, 6, 7, 8, एंगल का नाम दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, फर्स्ट थिंग वी लर्न वाज देयर फोर एंगल्स कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स, मतलब ये लाइन सी डी और ए बी के बीच, देखिए यहाँ पे अंदर में दिख रहा है ये वाला, ये 4, 3, 5 और 6, दीज आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इंटीरियर में है मतलब ढका हुआ है, ऐसा बोल सकते हैं, राइट। हिंदी में बोलेंगे इसको अंतः कोण। तो मतलब ए बी और सी डी के बीच में देखिए ये जो चार एंगल्स हैं, इसको बोलेंगे इंटीरियर कोण, इसका एंगल्स।
इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो बाहर वाला एंगल है ये वाला, ये देखिए हवा में लटक रहा है ये 4 एंगल, दीज आर कॉल्ड एक्सटर्नल एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये जो एंगल बना, दीज आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स, और ये और ये और ये दीज आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल्स, मतलब बाहर में है। हिंदी में अंतर कोण और बाह्य कोण, मतलब जो बाहर है वो बाह्य कोण, अंदर है अंतर कोण। ठीक है, तो ये एक कॉम्बिनेशन समझ में आया। ठीक है, तो अगर आपको कोई बोलेगा कि भाई मान लिया जाए कि ये ए बी सी डी है, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, so if somebody says what are the interior exterior angles, it will be easy कि ठीक है भाई जो अंदर में है वो इंटीरियर एंगल हो गया। अंदर मतलब ये ढका हुआ दिख रहा है ना, ए बी और सी डी भी लगता है, वो शादी में जाते हैं वो टेंट नहीं लगा रहता है ऐसे, तो वो टेंट लगा हुआ है, टेंट में ढका हुआ है एंगल से। ठीक है, इसको बारिश होगी तो गीला नहीं होगा एंगल से। ठीक है, और जो एक्सटर्नल है एक्सटीरियर एंगल्स है वो बाहर में है, कि भाई ये लोग अगर बाहर में शादी में गया है, भोज खा रहा है, तो गीला हो जाए बारिश होने पर। ठीक है, ओके, सो दीज आर 2 टाइप्स। अभी और देखते हैं, थर्ड थिंग इज लेट्स से, तो हमने इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल समझा, अंतः बाह्य कोण। ठीक है, दूसरा होता है, अब देखिए ये एंगल और ये एंगल को देखिए ध्यान से, तो दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल्स। हिंदी में क्या बोलते हैं करस्पॉन्डिंग को, बोलते शायद से देखना पड़ेगा, पूरक कोण या कुछ तो होता है, देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी के लिए इसको रखते हैं, this will say that in English only, that's what I remember right now। और हिंदी मीडियम के बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, उसका नाम हमको बता के चेक करके बताएंगे इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल देखेंगे अगर, या फिर ये एंगल और ये एंगल, या फिर ये एंगल और ये एंगल, मतलब थोड़ा इजी करते हैं, ये एंगल ये एंगल, ये एंगल ये एंगल, ठीक है, ये एंगल ये एंगल, these are called corresponding angles, these are called pair of corresponding angles in case of a transversal या तिर्यक-छेदी रेखाओं। सेम थिंग होगा, चौथा भी होगा, जो हमने 3 का बात किया, अभी ये एंगल और ये एंगल भी हो जाएगा। ठीक है, so these are called corresponding angles। ठीक है, अब देखिए दूसरा है पेयर ऑफ ओके, अभी अगर ऐसा सिचुएशन हो, ठीक है, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल, इसको बोलते हैं पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पहले तो ये इंटीरियर एंगल्स है क्योंकि ये कवर्ड है, ठीक है, इसको छाता मिला हुआ है, तो इंटीरियर है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा देखिए तो ये इसके अपोजिट में है, इसका मिरर इमेज जैसा है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अगर तो फिर अगर ऐसा देखेंगे, ये पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ, फिर ये और ये भी होगा, मतलब इसको 1 2 बोलेंगे, 3 4 बोलेंगे, तो 1 and 2 आर पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इन केस ऑफ अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, उसी तरह से 3 and 4 विल बी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब उसी तरह से अब इंटीरियर बोल दिया तो एक्सटीरियर सोचेंगे, एक्सटीरियर में क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला, इसको मान लिया जाए 5 है, और ये वाला, तो देखिए ये भी अपोजिट है, लेकिन अगर आउटसाइड है, अगर मतलब नो ये 2 लाइन के अंदर नहीं है, मतलब इंटीरियर नहीं है एक्सटीरियर है, तो ये हो गया अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, मतलब ये 5 और 6 ये अल्टरनेट एक्सटीरियर हो गया। उसी तरह से अगर इसको मान लिया हम लोग 7 बोलते अगर, और इसको 8 बोलते, तो होता है पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप ध्यान रखेंगे कि इंटीरियर एंगल क्या हो गया, तो इंटीरियर एंगल हो गया आपका जो इसको छाता मिला हुआ है, जो कवर्ड है, तो ये 1 2 ये वाला 1
1 2 3 4 जो है ये आपका इंटीरियर एंगल्स है। 5 7 6 8 जो है ये आपका एक्सटीरियर एंगल्स है, क्योंकि बाहर में इसको कोई कवर नहीं है। अब यहाँ पे फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में ये इसे अपोजिट है, वो हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा गंदा हो गया है। आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये हो गया, ये वाला और ये वाला, उसे उसका ऑपोजिट भी ये वाला और ये वाला, ठीक है। अगर पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे तो ये एंगल और ये एंगल एक्सटीरियर भी है और ऑल्टरनेट भी है, ठीक है। मतलब लाइन के ऑपोजिट साइड में, ये लाइन के ये लेफ्ट में है, ये राइट में है, ठीक है। तो ये एक्सटीरियर है और ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। उसी तरह से इंटरनल है, ये तो इंटीरियर है, ये तो उसको बोलते हैं, ये लाइन के ऑपोजिट साइड में, ये लेफ्ट में ये राइट में है, तो ओके, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो ये हो गया। तो हमने सीखा इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर क्या होता है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर क्या होता है, ओके। अब एक और फ्लेवर था जो हमने देखा नहीं, उसमें देखने लायक कुछ है नहीं। अभी देखिए ये वाला, इसको 1 2, इसको मान लिया 3 और 4 बोलते हैं, तो ठीक है। अब क्या है 1 2 क्या है, ये क्या है, इंटीरियर एंगल्स है और सेम साइड में है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड, इसको ऐसे ही बोलते हैं कि पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो देखिए दिस लाइन राइट, ए बी सी डी, और इसको बोलते हैं ई एफ। तो ये ई एफ जो है ना, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल एक्चुअली, मतलब तिर्यक-छेदी रेखा, ठीक है। दिस इज अ लाइन, द थर्ड लाइन which intersects two other lines. So इसलिए आपको ट्रांसवर्सल के लिए यू नीड दिस सेटअप, यू नीड टू अदर लाइंस। लेकिन when it comes to the name of the line, this one will be called the transversal, और हिंदी में तिर्यक-छेदी रेखा, क्योंकि यही रेखा है जो इस रेखा को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो अभी देखेंगे वही, मतलब ऑल योर एंगल का नेमिंग इज करस्पॉन्डिंग टू योर द ट्रांसवर्सल लाइन या तिर्यक-छेदी रेखा है जो ई एफ है, जो इसके एक ही साइड में है करस्पॉन्डिंग एंगल, इसके इसके नो अपोजिट साइड में है, तो इंटीरियर एक्सटीरियर नो अल्टरनेट एंगल हो गया। अपोजिट साइड में तो अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर में है और अपोजिट में इंटीरियर नो अल्टरनेट एंगल हो गया, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल हो गया, है ना। और तो बेसिकली this third line which is your transversal, that defines the naming of all the angles, ठीक है। तो इसको सिंपल रखते हैं अभी कि दो लाइंस हैं, इसको थर्ड लाइन क्रॉस करती है, इसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। हमने सीखा इंटीरियर एंगल्स के बारे में, जो यहाँ पर वाले एंगल्स हैं, जो बाहर वाले एंगल्स हैं उनको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल्स बोलते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं कि अगर ट्रांसवर्सल है इसके एक ही साइड में, ये देखिए ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, ठीक है, ठीक है। ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल हो गया, क्योंकि ट्रांसवर्सल के एक तरफ ये है एक तरफ ये है, लेकिन इंटीरियर है तो इंटीरियर तो रहेगा उसके नाम में, इंटीरियर ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट मतलब पलट गया, मिरर इमेज, ठीक है। उसी तरह से हमने सीखा कि अगर एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, तो मतलब इसका अल्टरनेट एंगल एक्सटीरियर में ये वाला हो जाएगा, उसी तरह से इसका अल्टरनेट ये वाला हो जाएगा एक्सटीरियर में, है ना। तो ये था लाइंस के बारे में। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज सीखते हैं। अभी तक मैंने एक बार भी नहीं बोला कि ये लाइंस में जो ट्रांसवर्सल वाला केस है, जहाँ पे व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय थर्ड लाइन और ट्रांसवर्सल, मैंने कभी नहीं बोला कि पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट कुछ बोला ही नहीं था, राइट। अब इमेजिन कीजिए कि व्हेन यू टॉकिंग अबाउट अ ट्रांसवर्सल ए
बी सी डी, ठीक है, ये है ई एफ। तो अब मान लिया जाए ए एंड बी पैरेलल है अगर, ठीक है, तब क्या होगा, आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी सेम, ठीक है, ये याद रख लीजिए। क्यों होता है ये हम लोग बाद में प्रूव भी कर सकते हैं, आप लोग देखेंगे, इसको आप करके देखेंगे। तो टू पैरेलल लाइंस में एक थर्ड लाइन लगाएंगे और फिर मेजर करेंगे ये एंगल और ये एंगल, देखिए ये हमेशा सेम होगा, ये भी सेम होगा, ठीक है, मतलब ये एंगल हमेशा सेम होगा, ये एंगल हमेशा सेम सेम होगा, ठीक है, इवन ये एंगल सॉरी, ये एंगल सेम होगा, ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, सॉरी बोल रहा था। तो जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है, वो हमेशा सेम होगा। तो उसके बाद ये एंगल और ये एंगल हमेशा सेम होता है, जो 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 शीर्षाभिमुख कोण होता है या वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है वो हमेशा सेम होता है। दैट आई डोंट नो इफ आई टोल्ड दैट और नॉट, बट वो हमेशा सेम ही होता है, ठीक है। मतलब अब जब भी when you're talking about two lines intersecting each other, vertically opposite angles are always the same. This angle will be same as this will be same as this, ठीक है, वो हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे भी वैसे होगा, this will be same as this will be same as this। तो अभी मैं बोल रहा था, हाँ, ये पैरेलल लाइंस के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा था कि अगर दो लाइंस पैरेलल है, देन ट्रांसवर्सल क्रॉसेस देम, दिस विल बी सेम एज दिस। इसको अगर 1 बोलते हैं, 2 बोलते हैं, इसको 3 बोलते हैं, 4 बोलते हैं, तो यू विल से 1 will be equal to 2, 3 will be equal to 4। Same way, if this is 5, this is 6, this is 7, this is 8, if these two lines are parallel, ठीक है, and a transversal crosses them, तो 5 will be equal to 8, equal to 8 मतलब उसका वैल्यू, एंगल का मेजरमेंट। सेम वे 6 will be equal to 7, ये हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। और ये याद रखेंगे नहीं, आप चाहे तो दो पैरेलल लाइंस को लेकर के एक थर्ड लाइन ड्रॉ कीजिए और उसका एंगल्स को मेजर करके देखिए अपने पास जो कंपास रहेगा उससे, ठीक है, देन यू विल नो व्हाट आई एम सेइंग इज राइट और नॉट, ठीक है। अभी इसका ये मतलब हुआ, इफ समबडी गिव्स यू अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसवर्सल, ओके, एंड सेज कि बताओ कि ये लाइंस पैरेलल है कि नहीं, सो व्हाट यू विल डू इज you'll always check कि corresponding angle same है कि नहीं। if the corresponding angle any pair of corresponding angle is same, ठीक है, मतलब ये और ये सेम है, या फिर ये और ये सेम है, ओके, या फिर ये और ये सेम है, या फिर ये और ये सेम है, एक भी पेयर सेम है, then you can say this is these lines ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल का यहाँ पे ये हेल्प है, दिस इज वन थिंग। अभी देखिए या फिर एक चेक ये कर सकते हैं आप, ठीक है, या फिर दूसरा चेक करेंगे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अगर ये एंगल सेम है, ठीक है, तो समझिए लाइन पैरेलल है। तो बेसिकली ना यहाँ पे जब ट्रांसवर्सल सीख रहे हैं, ट्रांसवर्सल आल्सो हेल्प्स यू, ट्रांसवर्सल या तिर्यक क्षैतिज रेखाएं ये आपको ये भी पता करने में मदद करती है कि द अदर टू लाइंस व्हिच आर कट बाय द ट्रांसवर्सल आर दे पैरेलल टू ईच अदर नॉट। तो आप दो फार्मूला होता है चेक करने के लिए। पहला आप देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है कि नहीं, कोई भी एक पेयर, और दूसरा है कि इंटीरियर एंगल सेम है कि नहीं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम है कि नहीं। अगर ये दो चेक आप देख लेते हैं, ये ठीक है अगर, देन यू कैन टेल दैट दोस टू दिस लाइन एंड दिस लाइन ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। अगर आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये वाला या ये वाला सेम है, या फिर एनी वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज सेम, मतलब ये वाला और ये वाला सेम है, या फिर ये वाला और ये वाला सेम है, देन यू कैन से
these two lines are parallel. So basically transversal और parallel lines का ये correlation है actually. ठीक है? So that is what brings us to the end of this class. Any question? No, sir. No? Very nice. तो बस यही आप लोग को भी बोलूंगा और जो बच्चे अलग से वीडियो देख रहे हैं उनको यही बोलूंगा कि पूरा वीडियो एक बार देखिएगा पूरा शुरू से अंत तक. And if you have any question, any doubt, please feel free to let me know, because I will honestly acknowledge to you guys that when I'm teaching you, I'm also learning. Okay, मैं डेली मतलब not डेली, वीक में कभी एक बार बैठ के ये जो कॉन्सेप्ट्स होता है ना उसको पढ़ता हूँ मैं और कोशिश करता हूँ कैसे आप लोगों को बताऊं कि आप समझ पाओ. ठीक है, चाहे वो ग्रेड 2 का बच्चा हो चाहे ग्रेड 10th का बच्चा हो. Whatever I teach, it should be understandable to everybody in the conceptual terms. तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये सिंपल आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से ही बताऊं. और उसके बाद आप लोगों को क्लास के बाद प्रैक्टिस करना पड़ेगा. ऑब्वियसली यू हैव टू डू द मैथ्स और डू द एक्सरसाइजेस दैट यू हैव इन द बुक्स. लेकिन जब ये देखेंगे तो after you come out of this class or after you watch this video completely, you should come out confident कि हाँ मेरे को समझ में आ गया. अब प्रैक्टिस करना पड़ता है तो उससे स्पीड बढ़ती है, तो वो करना ही पड़ेगा. सिर्फ वीडियो देख के कुछ नहीं होगा. लेकिन आप लोग भी देखिए वीडियो को और वीडियो देखने के बाद में जो भी फीडबैक हो लगे कि सर ये आप समझाए थे ठीक से, आप यू रश थ्रू इट और मेरे को समझ नहीं आया, आई वाज डिस्ट्रैक्टेड, जो भी रहेगा तो जस्ट लेट मी नो सो दैट आई कैन कीप ऑन फाइन ट्यूनिंग माय स्टाइल ऑफ टीचिंग, which will make me more confident and it'll be more beneficial for all of you. ठीक है? Okay. All right. So with that being said, I am stopping recording and see you guys in the next class. Okay? All right.